ओके सुनो, वो जितनी दूर दूर बैठे हुए सबको पहले आगे बिठाएंगे यहाँ पे लाके, ताकि अटेंशन हो। ओके। अच्छा, अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एक्चुअली दो वाइफ हैं होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 10 मार्क्स में आती है, एक हजरत खदीजा है और एक कौन सी है, हजरत आयशा है। हजरत सौदा आपने खुद रीड करना है, यहाँ पे आपके सामने आउटलाइन नजर आ रही है। दिस इज समथिंग विच शुड बी रेड वंस, और यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। हजरत सौदा के ऊपर सिर्फ तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे पूरा नोट आ सकता है, बट you need to focus. She is the first wife of Holy Prophet who allowed Holy after Hazrat Khadija, and who allowed Holy Prophet to marry another woman in her presence. So that is the point which you are going to write there. Secondly, Hazrat Sauda की early life आप mention करेंगे। She migrated to Abyssinia. Actually, Hazrat Sauda is the among those people who migrated in the first batch of migration to Abyssinia with her husband, and her husband died in Abyssinia. So she, like people suggested Holy Prophet, you can marry Hazrat Sauda, ताकि Holy Prophet के kids हैं after the death of Hazrat Khadija, they will get a guardian or someone to take care. And Hazrat Sauda को भी और जरूरत थी because her husband was the only Muslim from her family. After his death, the family, of course, was not willing to accept her as a Muslim. So Prophet ﷺ got married to her. Marriage contract हो गया, and then Hazrat Sauda was taken. I think यहाँ मैंने mention भी किया हुआ होगा. She was taken to Holy Prophet ﷺ वहाँ मदीना को, मक्का फिर वो आई और फिर Holy Prophet ﷺ को उन्होंने join किया. तो you can develop these. हजरत सौदा से related कुछ और भी points हैं, नीचे general points हैं. She narrated 5 hadiths from Holy Prophet ﷺ. And she died after the death of Holy Prophet. All the wives of Holy Prophet died after the death of Holy Prophet except दो, कौन सी दो wives हैं जो Holy Prophet की, हजरत खदीजा और दूसरी वो शायद किसी को भी ना पता हो, because we have not reached there. Two wives of Holy Prophet died during the life of Holy Prophet. One was हजरत खदीजा, second was, अच्छा मैं हिंट इतना दे देता हूँ, वैसे तो कईयों को नाम नहीं पता होंगे। होली प्रॉफिट की दो वाइफ्स के नाम में जैनब आता है। एक जैनब बिनते जहश हैं और एक है जैनब बिनते खुजैमा। Which of them died during the life of Holy Prophet? करेक्ट आंसर जैनब बिनते खुजैमा, ठीक है। क्योंकि जैनब बिनते जहश से रिलेटेड थोड़ी सी अलग डिस्कशन है, वो हम आगे देखेंगे उसको। अभी हम किसकी डिस्कशन कर रहे थे, हजरत सौदा की। किसी भी वाइफ के ऊपर, ये आपने रीड करना है, मैं आपको सिर्फ आउटलाइन बता रहा हूँ। किसी भी वाइफ के ऊपर जब नोट आता है ना, ये जो लास्ट पैराग्राफ है, यू कैन सी देयर आर नंबर ऑफ sentences or adjective कह लें या attributes कह लें, which could be used for any wife of Holy Prophet, like क्या क्या है, extremely generous, simple, pious, sense of duty and obedience. What else? Sound knowledge of religious matters. Okay, दिस वन इज नॉट गोइंग टू बी फॉर एवरीवन बाय द वे, ये नहीं लिख देना क्योंकि किसी ने ज्यादा भी नरेट की हुई है। अच्छा, हजरत आयशा की फिर सेइंग है, फिर हजरत आयशा की सेइंग है हजरत सौदा के बारे में। नॉर्मली अगर किसी आदमी की एक से ज्यादा वाइफ्स होती है तो देयर इज अ जेलसी अमंग देम, बट हजरत आयशा एंड हजरत सौदा के बीच में अंडरस्टैंडिंग था। एंड हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा सेड, इफ आई वांट टू सी इन द स्केलेटन, कुछ बुक्स में स्किन लिखा हुआ है, if I want to see in the skin of anyone, I want to see myself in the skin of Hazrat Sauda. So that shows their close bonding and understanding with each other. So that is the point which is specifically for Hazrat Sauda. समझ आ रहा है? अब आ जाते हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के टॉपिक पे। हजरत आयशा पे 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। What is the possible outline for Hazrat Aisha रजी अल्लाह अन्हा? If I ask you, if we split it, life before marriage, how did she get married to Holy Prophet? Her services during Prophet's life, some occasions, some issues which took place in her life, and also we are going to talk about what happened. Okay, and also we are going to talk about her life after the death. हजरत आयशा की ना प्रॉफिट की जब डेथ हुई थी, हजरत आयशा उसके बाद ऑलमोस्ट 50 years और रही हैं आफ्टर द डिमाइस ऑफ प्रॉफिट की डेथ हुई है व्हेन हजरत आयशा वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू 20s एक्चुअली, एंड शी डाइड आफ्टर 50 years ऑफ प्रॉफिट डेथ। तो कुछ बुक्स में आपने लिखा हुआ मिलेगा कि शी लिव्ड फॉर 5 more decades after the death of Holy Prophet. That means same thing that she lived after that. So we need that phase as well. We will discuss about Hazrat Aisha and Hazrat Ali's caliphate by this. वहाँ पर discussion आएगा, but we will discuss that part there directly. If we talk about Hazrat Aisha's life before marriage with Holy Prophet, did she marry anyone other than Holy Prophet? She is the only wife of Holy Prophet who was not married to anyone before marrying with Holy Prophet. That's one thing. What was her father's name? Hazrat Abu Bakr.
Did she grew up in a family which was enemy of Islam or which accepted Islam when she was born? Accepted Islam. So, what is the name of her sister? अस्मा। हजरत अस्मा, ग्रेट। एंड हजरत अस्मा को भी आप रोल को भी मेंशन कर सकते हैं। हर ब्रदर इज ऑल्सो फेमस। हजरत अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अबू बकर। अब्दुल्ला बिन अबू बकर एंड मोहम्मद बिन अबू बकर। मोहम्मद वी विल डिस्कस इट लेटर। बट अब्दुल्ला बिन अबू बकर हु यूज्ड टू ब्रिंग द न्यूज टू होली प्रॉफिट, ये सारी चीजें आपकी लिंक्ड हो रही हैं, ठीक है, ये आपकी अर्ली लाइफ है। अब ना, हाउ हजरत आयशा गॉट मैरिड टू होली प्रॉफिट, इसके ऊपर थोड़ी सी कुछ बुक्स में डिटेल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ड्रीम में हजरत जिब्राइल हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का जो फेस है एक तरह से वो रैप करके लेके आए एंड टोल्ड होली प्रॉफिट शी विल बी योर वाइफ इन दिस वर्ल्ड एंड लाइफ हेयर आफ्टर। So if you want, you can mention that one, or however you will mention Prophet was asked to marry Hazrat Aisha रजी अल्लाह अन्हा। आगे आप फिर उसको फिर क्या करते हैं दोबारा। मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो माइग्रेशन से पहले हुआ है। मैरिज वाज कंप्लीटेड आफ्टर प्रॉफिट माइग्रेशन टू मदीना। उसके बाद माइग्रेशन हुई है। शी गॉट मैरिड टू होली प्रॉफिट एट एन अर्ली एज, and that was the age when she was able to learn and gain lots of things over there. So she learned number of things from Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and she narrated a large number of hadiths from Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. How many hadiths do you think he has narrated from Holy Prophet? ठीक है, हो गया, yes. ओवर 2000। Over 2000, great. Or we can say 2210, 2210। अगर आप एग्जैक्ट फिगर पे जाते हैं, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से जो हदीसें नरेट हुई हैं वो है 2210 या 2210। ये क्यों मिल जा रहा है, इसको क्या हो गया? ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक चीज है यहाँ पे। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द slander affair or false accusation on Hazrat Aisha? If you remember, I was telling you about the hypocrites last time. Okay, what did they do and how did they made a false accusation on Hazrat Aisha radiallahu anha? You remember that? Who will tell me briefly about that? Yes. Okay, great. Hmm. 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 Verses of Surah Noor, actually, right? Hmm. Correct. Great. Very good. How many of you got that? कुछ ने थोड़ी देर बाद अटेंशन पे किया, कुछ ने नहीं सुना, कुछ दूर थे, आवाज में नहीं आई होगी। मैं इसे दोबारा रिकैप कर देता हूँ। हजरत आयशा की जब भी आप अर्ली लाइफ पे फोकस करते हैं, बहुत सी बुक्स में वो लैक करता है, मिसिंग है। इवन इन माई हैंड आउट यू विल नॉट फाइंड दैट वन। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड इफ्क इंसिडेंट और फॉल्स एक्विजिशन इंसिडेंट। कुछ बुक्स में इसके लिए स्लेंडर अफेयर वर्ड भी यूज हुआ है। The Prophet ﷺ and his companions were returning back from a ghazwa. On their way back, they stopped at a place where Hazrat Aisha's necklace, some says, broke away or she missed the necklace, and she was late to join and sit in the back of the camel. Camel का जो बैक पे सीट होती है उस पर वो चली बैठती थी, फिर लोग उसको फिर वो आगे मूव करते थे। So she was late, she did not reach there. The caravan thought that she is inside it and the caravan moved on. Hazrat Aisha radiallahu anha, when she came outside, she found that the caravan has left. And then she was waiting there. One of the companion of Holy Prophet, his name was Safwan bin Muattal. Safwan bin Muattal was that companion whose duty was to check कि अगर कोई सामान रह गया है तो उसको वो क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। When he saw Hazrat Aisha, he asked Hazrat Aisha कि आप मेरे कैमल पे बैठ जाएं, and then he moved Hazrat Aisha to the next stop जहाँ पे मुसलमानों की आर्मी ने स्टॉप लिया था। When they reached there, exactly correct कि वो जो मुनाफिकीन थे, they took the advantage of that and they made a false rumor, और वो rumor इतना strong था कि हजरत आयशा हैज रॉन्ग रिलेशन, या दिस वाज समथिंग व्हिच इज डन इंटेंशनली, कि मैनी ट्रू बिलीवर्स स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट। इतनी स्ट्रांग वो र्यूमर थी जिसकी वजह से जो है लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। इवन होली प्रॉफिट हजरत अबू बकर स्टॉप टॉकिंग टू हजरत आयशा फॉर फ्यू डेज until Allah revealed the verses of सूरा नूर। सूरा नूर की जो वर्सेस हैं फिर अल्लाह ताला ने रिवील की, विच मेंशन द चेस्टिटी ऑफ हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा। हजरत आयशा की जो चेस्टिटी है और पायसनेस ने उसने क्या किया, उसको हाईलाइट किया। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी एडेड इन इट। और आपको मैंने कल जब करवा रहा था टॉपिक रिलेशन विद मुनाफिकीन के साथ,
वहां पे इंफॉर्मेशन मेंशन हुई हुई है, वो इंफॉर्मेशन आपने यहाँ हजरत आयशा के टॉपिक में क्या करनी है, ऐड करनी है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट हजरत आयशा's अर्ली लाइफ, हर स्टे विद होली प्रॉफिट, यू शुड ऐड दीज पॉइंट्स देयर इन। ओके। एक और चीज, हजरत आयशा के इस वजह से अल्लाह ताला ने खाली उनकी चेस्टिटी की वर्सेस रिवील नहीं की, अल्लाह रिवील्ड सम अदर वर्सेस ऑफ कुरान फॉर हजरत आयशा। कैन यू टेल मी दोस थिंग्स जिसकी वजह से कुरान की वर्सेस रिवील हुई है रिलेटेड टू हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा? How many of you know about tayammum, dry ablution? You know that one, right? Dry ablution. Everyone knows that one. No? Tayammum or dry ablution, right? The verses of dry ablution were revealed due to Hazrat Aisha radiallahu anha as well. Now look at this source quickly. मैं आपको एक छोटा सा source दिखाता हूँ और मैं suggest करूंगा आप एक दफा ये वाला paragraph read करें, and then you will find lots of things which I was talking about. I'm giving you 1 minute. Read it carefully. और देखें इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने भी डिस्कस किए और कुछ मिस भी हुए, क्योंकि दैट इज मिसिंग इन माय हैंड आउट टू बी ऑनेस्ट। यस, ये पूरा फोटोग्राफिक मेमोरी मीन्स कि आप कोई चीज सुन के देखते हैं आपके माइंड में उसका इमेज बैठ जाता है, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर, या बहुत अच्छी मेमोरी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, सिंपल वर्ड। ठीक है। और मेन चीज है बैटर ऑफ बहुत में शी सर्व वाटर, that is one thing which we are going to talk about it. Many verses of Quran were revealed. I told you one was related to false accusation against her. Then you can see verses about tayammum, about dry ablution, many rulings related to women. जो भी हजरत आयशा की वजह से ही होली प्रॉफिट ने जब वो इशू प्रॉफिट के पास आया, अल्लाह ताला ने कुरान की वर्सेस को रिवील कर दिया। You will find more points related to that one. प्लस प्रॉफिट के जो लास्ट डेज थे वो भी आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लास्ट डेज थे, दे वर देयर इन द रूम ऑफ हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, तो वो भी पॉइंट वहां पे ऐड हो सकता है। माय हैंड आउट लैक फ्यू डिटेल्स, वो डिटेल्स मैंने अभी आपको दिखाई। आई विल ट्राई कि मैं इसको किसी उसमें जब अपडेटेड आपको शेयर करूंगा तो इसके अंदर उसको फाइल को भी अटैच कर दूंगा साथ में। वी नीड दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन देयर, क्योंकि कैम्ब्रिज के अंदर क्वेश्चन आता है हजरत आयशाज लाइफ ड्यूरिंग प्रॉफिट्स लाइफ टाइम। तो आपने जो बाद का इवेंट है ना सारा ये नहीं लिखना है प्रॉफिट की डेथ के बाद। एंड माय हैंडआउट इज कवरिंग बोथ पोर्शंस देयर, so we have less details, so we need to add more details there. Hazrat Aisha as a wife of Holy Prophet, during the life of Holy Prophet में 6 to 7 things must be covered in it. What are they? Her life before marriage, marriage with Holy Prophet, services for Islam, different occasions, narration of hadith and all of these things, plus false verses of Quran which were revealed for Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु अन्हा, उसमें वो false accusation का डिटेल आएगा। कैम्ब्रिज का जो मॉडल आंसर है, मार्किंग स्कीम है, उसका 70% आंसर फॉल्स एक्विजिशन पे ही रोटेट कर रहा है अभी जो लेटेस्ट मार्किंग स्कीम है। तो आपको उस पोर्शन को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना है, बाकी जितनी चीजें वो भी इसके अंदर आती हैं। यस, फोर में ही आता। जो वाइफ्स के ऊपर जो थोड़ी सी अनफेमस हैं या बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं होती हैं, कैम्ब्रिज फिर क्या करता है, आपको 4-5 नेम्स दे देता है और आपसे कहता है चूज एनी 3 वाइफ्स ऑफ होली प्रॉफिट एंड राइट अकाउंट ऑफ देम। तो उन 3 में भी ना एक थोड़ी फेमस होती है, दो थोड़ी कम फेमस होती हैं, तो आपका आंसर बैलेंस हो जाता है। 4 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं प्रॉफिट्स टीचिंग बिहेवियर इंटरेक्शन विद द वाइफ्स, या हाउ प्रॉफिट इज अ रोल मॉडल फॉर द मुस्लिम मेन टुडे रिलेटेड टू देयर फैमिली लाइफ, इस तरह करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 4 वाला फैक्ट नहीं पूछता, अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा होता है आपसे। ठीक हो गया। तो आज हमने मेनली जो है दो चीजें कवर की हैं। एक है पैसेजेस, व्हाई आई एम आस्किंग यू टू वर्क ऑन पैसेजेस, बिकॉज अगला जो टॉपिक आएगा वो थीम बेस्ड क्वेश्चंस पे आएगा, वो फिर अल्लाह एंड हिज रिलेशन विद क्रिएटेड वर्ल्ड पे है। और थीम बेस्ड क्वेश्चंस की कोशिश करें, प्रैक्टिस भी करें। जो मैं मंडे को टेस्ट लूंगा दैट विल बी फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द होली प्रॉफिट्स लाइफ इन मदीना, वो मैं अभी टॉपिक शेयर भी कर दूंगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रॉम थीम बेस्ड क्वेश्चंस बाय द वे। तो दैट इज थीम बेस्ड क्वेश्चंस का मैं आगे अगले वीक्स में टेस्ट लूंगा, तो आपने कोशिश करनी है उस वक्त तक आपको क्लियर भी हो जाएगा। और नेक्स्ट वीक में वी विल बी गोइंग ऑन विद सोर्सेज ऑफ लॉ टॉपिक एज वेल, जो इस वीक में करवाना था बट आई इंटेंशनली पोस्टपोन्ड इट टू द नेक्स्ट वीक। यस, क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? ओके, आई थॉट यू आर रेजिंग द हैंड। अच्छा, बैटल ऑफ जमल अभी हम नहीं करेंगे, वो हम हजरत अली की कैलिफेट में करें, वो हजरत अली की कैलिफेट में, यस वहीं पे करें। ठीक है। तो डन फॉर टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।